analysis, that is the basic in an introduction part. Today we'll try to understand the financial statement analysis, that is the comparative statement, common size statement and all those things. Ultimately আমাদের এই যে financial statement টা কেন বানানো হচ্ছে, what is the base, introduction, the theoretical portion I have explained yesterday, right? এই আজকে আমরা করব এই যে financial statement analysis টা আছে এটা কিরকম হয়, means how to go ahead with this financial statement analysis. Fine. So today we'll be doing it from your Makout examination point of view, that is the paper, the way it will come in your examination. Fine. Financial statement analysis. Now financial statements, as we discussed, that is what is a financial statements? Financial statements are prepared with an objective of facilitating decision making. Financial statements हम लोग क्यों बनाते हैं? Simply in order to facilitate the decision making. Now definitely it is very important that we should know how to analyze it. Financial statements तो हमने बना लिया कि financial statement ऐसे है ऐसे and all those things. ठीक है, statement हमने बना लिया. It is providing information to the users so that they can take proper decision. प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो सके इसलिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं. बट व्हाट अबाउट द एनालिसिस पार्ट? इसको अब मेरे पास सपोज मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिला किसी कंपनी का क्योंकि मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, बट मुझे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, एनालिसिस करना तो आना चाहिए ना. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. Fine. Financial analysis is also known as analysis and interpretation of financial statements. तो financial analysis क्या है? Simply financial जो statements रहेंगे, financial statements को समझना, पढ़ना, analysis करना, interpretation करना. Interpretation क्यों करेंगे? Simply to take further decisions. It refers to the process of determining financial strengths and weakness of the firm by studying the relationship between the items of the balance sheet, PL account and other operative data. तो financial statements में क्या क्या चीज़ें आ गई आपकी? इनकम स्टेटमेंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, बैलेंस शीट आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है? सिंपल सी बात है, एक कंपनी का फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, वो हमें फाइनेंशियल एनालिसिस से समझ में आएगा. The purpose of such analysis is to diagnose the information contained in the financial statement based on which one can judge the profitability and financial soundness of the firm. सीधी सी बात है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हुआ या फाइनेंशियल जो हम स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंडनेस. फाइनेंशियल कंपनी का जो फाइनेंशियल साउंडनेस है उसको समझने की कोशिश करना, यही है मेन फाइनेंशियल एनालिसिस का काम. Financial statement analysis is an attempt to determine the significance and meaning of the financial statement data so that forecast may be made of the future earnings, ability to pay interest and debt maturities and profitability of a sound dividend policy. देखो financial statement analysis का मेन काम क्या होता है? Financials जो डेटा है, जैसे कंपनी का एक बैलेंस शीट आपने देखा या इनकम स्टेटमेंट देखा, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, सेल्स कितना है या हमारा जो टर्नओवर कितना है, एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज़ क्या, बहुत सारे तो आइटम्स रहेंगे. अब वो आइटम्स को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? उसके लिए हमें फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए. फाइनेंशियल एनालिसिस का काम यही होता है कि वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा, बट उस डेटा से मैं प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव फॉरकास्ट कैसे निकालूं? अल्टीमेट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे एक फॉरकास्ट करना है. ऑब्जेक्टिव फॉरकास्ट मीन्स एक प्रॉपर सर्टेन, मेरा बोलते ना ऑब्जेक्टिव फॉरकास्ट होना चाहिए. मैं क्या फॉरकास्ट करना चाह रहा हूँ, उसकी ज़रूरत क्या है, तो अल्टीमेटली वो कैसे करेंगे? उसके लिए जो प्रोसेस है ना, ये एंटायर चीज़ों का प्रोसेस. सपोज तुम एक इन्वेस्टर हो, तुम एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो एक कंपनी में, तो इन्वेस्टमेंट जब करोगे तो आप क्या देखोगे? कंपनी का सपोज एक फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी का सेल्स टर्नओवर क्या है, एंड ऑल दोस थिंग, लेवरेज क्या है. अब ये सब चीज़ तो मैं बोल रही हूँ, बट ये सब चीज़ कैसे आएगी? हमें कैसे समझ में आएगा कि किसका रेशियो का क्या मतलब हो सकता है?
एक कंपनी का करंट एसेट इतना है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस कंपनी में, हाउ विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. फॉर दैट रीजन वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. फाइन. So I'm just writing the theoretical meaning. The term financial statement analysis, just writing it. The term financial statement analysis contains both analysis and interpretation. Fine. Therefore, a distinction should be made between the two terms. The term analysis is used to mean the simplification of the financial data. Analysis में हम उस चीज को समझ रहे हैं, सिंपली हम चीजों को सिंप्लीफाई. एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, सिंपली हम चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, इजी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो गया एनालिसिस. फाइन. डेटा गिवन इन द एंड ऑन द other hand interpretation means explaining and meaning and significance of data so simplify. इस चीजों को इजी किया, समझा, और इंटरप्रिटेशन, उससे एक प्रॉपर हम एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं. ठीक है. अब हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस कितना तरह का होगा उस पर हम लोग आ जाते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. अब द फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी कैटेगराइज्ड can be different categories depending upon. अब देखो किस किस तरीके से हम लोग का हो सकता है. एक हो गया आपका ऑन द मटेरियल्स यूज्ड. इस बेसिस में हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस हो रही है. एंड द मेथड ऑफ ऑपरेशंस. ये दो तरीके से हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज. ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज हमारे क्या क्या हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूज वी कैन हैव एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस. ये दो तरह के एनालिसिस हो सकती है. एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस जो यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस. According to this method, operations followed in the analysis, financial analysis can be horizontal analysis and vertical analysis. ये दो तरह का हो सकता है. ठीक है. अभी थोड़ा थ्योरी है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल्स में जाएंगे कि अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किस तरीके से करना है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. अब हम लोग आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज. फर्स्ट इज एक्सटर्नल एनालिसिस. एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल नाम से ही समझ में आ रहा है, समथिंग एक्सटर्नल. आउटसाइडर्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस डू एक्सटर्नल एनालिसिस. तो जैसे तुम एक कंपनी का एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यूजर हो, तो यू आर एन एक्सटर्नल यूजर. तो एक्सटर्नल्स वो हो गए आउटसाइडर्स जो हैं. फाइन. अब आउटसाइडर्स जो हैं वो इंक्लूड इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, पोटेंशियल क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज. ये सारे क्या हो गए, ये एक्सटर्नल हो गए. एक बिजनेस के लिए ये सब बाहरी लोग हो गए. तो इन लोग जो हैं, इन लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे. इन्वेस्टमेंट करने के पहले इन लोग को तो कंपनी के इंफॉर्मेशन को देखनी होगी ना. तो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं. तो आउटसाइडर्स लोग जो हैं, जैसे एक इन्वेस्टर है या पोटेंशियल इन्वेस्टर है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है. मैं एक इन्वेस्टर, जैसे सपोज मैंने आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो मैं तो एक एक्सटर्नल ही हूँ, मैं तो आउटसाइडर हूँ, मैं तो उस कंपनी में क्या हो रहा है इंटरनली मैं नहीं जान सकती. तो एज एन इन्वेस्टर, या सपोज तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यू आर अ पोटेंशियल इन्वेस्टर. तो तुम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो तुम कैसे करोगी, तुम वहाँ पे स्टडी कैसे करोगी. तो विल जस्ट गो थ्रू दी पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के. The recent government regulations requiring business firms to make available more detailed information to the public through audited accounts have considerably improved the position of external analysis. अभी क्या है, गवर्नमेंट से जैसे कुछ स्टैट्यूटरी नियम बन गए हैं, जिसके कारण जितने भी अकाउंट्स हैं जो पब्लिश किए जा रहे हैं वो सारे ऑडिटेड होने चाहिए, प्रॉपर ऑडिटेड.
तो उससे क्या हुआ, हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस का पोजीशन भी स्ट्रांग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटरनल एनालिसिस। पहली थी एक्सटर्नल एनालिसिस, अब हो गई हमारी इंटरनल एनालिसिस। The analysis conducted by person having access to the internal accounting records is known as internal. Internal analysis performed by executive and employee of the organization, government agencies which have the statutory powers vested. Financial analysis for managerial purpose is in the internal type. जैसे CEO हुए, director हुए कंपनी के, executives हुए, managers हुए, या ऑडिटर्स ले लो, सरकार ने ऑडिट के लिए भेजा है, तो ये सारे जो हो गए इंटरनल एनालिसिस, इनको इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनके हाथ में, वो देख सकते हैं। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, अब हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। इसमें एनालिसिस हो गई, एक हो गई आपकी हॉराइजॉन्टल एनालिसिस। Horizontal analysis, it refers to the comparison of financial data of a company for several years. Different companies का बहुत सालों के लिए हम देख रहे हैं। For this type of analysis, figures are presented horizontally over a number of columns. The figures of the various years are compared with a standard or base year. The base year is a year chosen at the beginning point. This analysis is also known as dynamic analysis. इस horizontal analysis को हम लोग dynamic एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेस ईयर ले लेते हैं और उस ईयर के बाद हर साल का ईयर टू ईयर बेसिस आप देख लो, कॉलम वाइज हमारा डेटा रहता है। कॉलम वाइज जो डेटा है या फिगर्स हैं वो सारे रहेंगे आपके, डेटा बोलो या फिगर्स जो रहते हैं वो रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेस ईयर है उसके संग कंपैरिजन कर सकते हैं इसको। The horizontal analysis makes it possible to draw our attention on items that have changed significantly during the period under review. A comparison of an item over several periods with a base year may show a trend developing. The two tools employed in horizontal are comparative statements and trend percentage. अब horizontal analysis में जो tools use करते हैं हम लोग, वो आप ले लो, it's comparative statement, स्टेटमेंट हो गया, और एक हो गया आपका ट्रेंड परसेंटेज। फाइन, नाउ वी आर मूविंग टू द वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल, this refers to the study of relationship of the various items in the financial statements of one accounting period. In this type of analysis, the amounts from the financial statement of 1 year are compared with the base year. Same way, in vertical analysis also we have a base year. We select one base year and on that basis we compare. The base year is selected from the statement. The analysis is also known as static analysis. See, as in horizontal analysis, we defined it as dynamic analysis. Here we are defining it as static analysis. Fine. In the horizontal analysis is also called dynamic. Vertical analysis is called static analysis. Fine. Common size financial statement and financial ratios are the tool employed in the vertical analysis. In the vertical analysis, since it considers the data for one time period only, it is not the best method for financial statement analysis. देखो क्या होता है यहाँ पर, आपका सबसे पहले चीज होगा स्टैटिक एनालिसिस में जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं, टूल्स आर कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रेशियोज, कॉमन साइज financial statements and common size financial statement and financial ratios. These are the tools. But in vertical analysis, they compared, it considers the data for one time period only. यहाँ पर जो डेटा है, डेटा फॉर वन टाइम पीरियड only, and hence it is not very much what to say, very much used or advisable or not effective बोल सकते हैं, it's not very much effective. ठीक है, now procedure of financial statement analysis. How will we go ahead with this financial statement analysis? Now
The following procedure is adopted for the analysis and interpretation of financial statement. How will we start ahead with the financial statement analysis? Firstly, the analyst should acquaint himself with the principles and postulates of accounting. पहले क्या करना चाहिए, आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करो या वर्टिकल, पहले जो भी एनालिस्ट है ही शुड अंडरस्टैंड जो डिफरेंट पॉलिसीज प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग के वो समझना पड़ेगा, उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या प्लान्स है, कैसे हमें करना है. The scope of the analysis should be determined so that the sphere of the work may be decided. मेरा scope क्या है, मैं क्यों analysis कर रहा हूँ, then I need to understand. Fine. The financial information given in the statement should be pre-grouped. A relationship is established among financial statements with the help of tools and techniques of analysis such as ratios, trends, common size tools and techniques. Fine. The information is interpreted into simple and effective terms. ये just simply बता रहा है the different procedures. कैसे प्रोसेस होना चाहिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का. ठीक है ना. अब हम लोग आ जाते हैं एक इसमें कंपैरेटिव, इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हम जो करेंगे वो कैसे करते हैं. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब जब नाउ वी आर मूविंग टू एक्चुअल प्रोसेसेस. कंपैरेटिव स्टेटमेंट. Comparative financial statements are statements of financial position at different periods of time. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो comparative statements हम कर रहे हैं, हम compare कर रहे हैं, जैसे 2011 का, 2012 का और 2013, 2014, ऐसे 4 साल का, 4 साल के different figures को हम compare करें. It could be net profit, net sales, ratios and all, कुछ भी हो सकता है, right? Financial position is shown in a comparative form so as to give an idea of the financial position at 2 or more period. यहाँ पर क्या होता है, जो financial positions है comparative statements में, what we do exactly, we just provide or we just analyze the financial position in a comparative form. Comparative form में सारी financial information दी जाती है 2 या 2 से ज़्यादा periods के लिए. Any of the statement prepared in a comparative form will be covered in a comparative statement. वो कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, उसको कंपैरेटिव फॉर्म में हम ला सकते हैं. यू प्रोवाइड मी एनी रिपोर्ट, आई कैन मेक इट इन अ कंपैरेटिव वर्जन. फाइन. देयर आर जनरली 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन कंपैरिजन फॉर्म फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस पर्पस. 2 चीज होती हैं सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं, एक है बैलेंस शीट और एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या हम उसको बोल सकते हैं इनकम statement. These are 2 main figures, means 2 main statements, financial statements from which we can draw our all the financials. ठीक है. Any of the statement prepared in a comparative form will be covered. There are 2 basic financial statements which we understood. In a comparative statement, not only there is a comparison of the figures of the 2 period, but it also show the relationship between balance sheet and income statement. ठीक है, which enables a study of the financial position and operative result. The statement show absolute figures. यहाँ पे statement जो भी होगा comparative statement, आपको absolute figures दिखेगा, रुपये and amount. क्या रुपया में है, amount कितना है. Changes in absolute figure. Absolute figure में क्या change हुआ, net sales अगर इतना रुपये का है तो what is the change in the sales figure. If the profitability, net profit is 1 crore or 1 million, then what is the change in that figures? Changes in the, I'm just writing it down. The statement show the absolute figures दिखेगा, changes in absolute figures. Fine. Absolute data in terms of percentage, then increase or decrease in terms of percentage. तो स्टेटमेंट में जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा. एब्सोल्यूट फिगर्स क्या है, चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर्स क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या परसेंटेज है, ठीक है, एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ये सारी चीजें आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट से मिल जाएगी.
The person analyzing is able to draw the conclusion when figures are given in a comparative position. ये बहुत इजी हो जाता है जब हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट से बनाते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। जैसे मैं एक सम्स दिखा रही हूँ, मैं आपको एक सम्स करके दिखाते हैं, तो वहाँ से आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जैसे फर्स्ट हो गई कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होते है वो दिखाती हूँ, तुमको मिल जाएगा ना सारा फिगर, ये सब मिल जाता है ना। चलो हम लोग आ जाते हैं पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। Now if there is any deviation in the use of accounting principle, the same must be mentioned. The two comparative statements are, two comparative statements है बैलेंस शीट, जिसको हम कंपेयर करते हैं, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। ये दो ही हैं जिसको लेकर हमारा पूरा अकाउंटिंग या प्रिंसिपल जो जितना भी कर रहे हैं ना हम लोग सारी पढ़ाई, ये दो चीज को लेकर ही, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, the comparative balance sheet analysis is the study of trend of the same items, groups of items and computed items into two or more balance sheet of the business on different date. ये comparative balance, अपना स्कूल का रेड वाला बैग निकाल ले। अच्छा ऊपर आके देखने जाओ, निकाल ले। नानी है ना ऊपर, जब देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है, कंपैरेटिव कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टडी कर रहा है द ट्रेंड ऑफ सम सेम आइटम। जैसे सपोज एसेट है, या मैं ले रही हूँ करंट एसेट। इफ यू टेक दिस डिफरेंट आइटम्स, suppose we are taking the asset as an item of balance sheet, current asset is also another item of balance sheet. Now if I am taking these two items, fine, now I am comparing the trend of these two items for different period, or I am studying the different balance sheet. Let me take this format. Suppose I am taking the trend of asset and current asset for the year 2011 and 2012, fine. So since I am comparing it, so I'm taking the asset balance for 2011 maybe 1 crore and 2012 it is 2 crore. So this way I'm making these things very clear, right? So I'm using, or I'm studying the trends of the same items or group of item and computed item into two or more balance sheet of the same of the business, okay, on different dates. The changes in the balance sheet item reflects the conducts of the business. Now definitely if there's an increase in the asset position from 1 crore to 2 crore, so definitely there's an appreciation. So we can understand that this must be the fixed asset. फिक्स्ड एसेट्स की ही अप्रिसिएशन होती है, करंट एसेट्स में अप्रिसिएशन नॉर्मली नहीं होगा इतना, और करंट एसेट में होगा भी तो वो स्टॉक रिप्रेजेंट करेगा, इन्वेंट्री। दिस चेंजेस कैन बी नोटिस बाय कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। नॉर्मली हम लोग ये हर फर्स्ट, जैसे 31 मार्च का एक हमारा बैलेंस शीट कवर हुआ, फिर नेक्स्ट पीरियड हुआ 31 मार्च, तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट्स को स्टडी करते हैं। A comparative balance sheet has two columns for the data of the date of original balance sheets. A third column may be added for giving a percentage of increase or decrease. मतलब ये 2011 का डेटा, 2012 का डेटा, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज चेंज। कर सकते हैं ना, ये हम लोग जब देखेंगे प्रैक्टिकली करके, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल्स, ठीक है ना। गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। गाइडलाइंस क्या है? While interpreting the comparative balance sheet, the interpreter is expected to study the following aspect: current financial and liquidity position. Current financial liquidity position क्या है? Long term financial and liquidity position. Current financial और liquidity position क्या है? Long term financial and liquidity position क्या है? And profitability of the concern. मतलब ये तीन एस्पेक्ट को हमें ध्यान देना। इसमें फर्स्ट आ गया आपका करंट फाइनेंशियल एंड लिक्विडिटी पोजीशन। करंट फाइनेंशियल्स का मतलब ये हो गया कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट एसेट्स के बारे में। इन ऑर्डर टू स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न, वन शुड मेक अ कंपैरिजन द वर्किंग कैपिटल ऑफ बोथ द ईयर्स। तो जब हम लोग करंट एसेट्स की बात करते हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। सी करंट एसेट्स मतलब आपका स्टॉक इन ट्रेड हो गया, इन्वेंट्री हो गई, और सिंपली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट एसेट्स और करंट रेशियो, जैसे एक रेशियो होता है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, करंट रेशियो को हम लोग स्टडी करते हैं।
Why do we study current ratio? Current ratio represents an ratio between current assets to current liabilities. It simply represents that what is the status of your current assets to bear your current liabilities. ये करंट रेशियो, जैसे करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका वो एसेट जो एक साल के अंदर इजीली, मतलब करंट एसेट्स किसको बोलते हैं हम लोग, विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश. ये आपकी लिक्विडिटी पोजीशन शो कर रही है ना. तो व्हेन वी आर कंसर्न विद द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, हम एक कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे फोकस करते हैं, तो हमारा मेन कंसर्न होता है कि हम करंट एसेट्स को देखें. ऐसे ही एक करंट रेशियो होता है. करंट रेशियो हम लोग को स्टडी करना होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एनी कंपनी. ये स्टडी करता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के रेशियो को. तो हम लोग जैसे यहाँ पे करंट एसेट, व्हेन वी आर स्टडिंग द करंट फाइनेंशियल एंड लिक्विडिटी पोजीशन, जब हमें इस बैलेंस शीट से, देखो एक तो चीज समझ में आया कि बैलेंस शीट से हम लोग क्या क्या चीज समझ सकते हैं. वी कैन स्टडी दी करंट फाइनेंशियल पोजीशन, और मैं बोल सकती हूँ लिक्विडिटी पोजीशन जो हो गया शॉर्ट टर्म. देन हो गया लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हो गया, या मैं लिक्विडिटी पोजीशन बता सकती हूँ, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी. एंड अनदर इज प्रॉफिटेबिलिटी. तो ये हो गया शॉर्ट टर्म में, ये हो गया लॉन्ग टर्म में, और ये तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी फिर है ही. ये तीन एस्पेक्ट आप स्टडी कर सकते हो बैलेंस शीट से. क्लियर है? समझ आ रहा है? So first is the if we are considering the balance sheet, if we are studying the balance sheet, then at that point of time, if we are studying the balance sheet, then first thing that we have to understand is the current financial and liquidity position. Current financial and liquidity position. This is the first thing we need to understand. Fine. So current financial and liquidity position, simply it indicates the short term liquidity position of a company. In order to understand the short term liquidity position of a company, we need to understand the working capital position. Working capital means जो एक कंपनी को रनिंग रखने के लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन अ रनिंग पोजीशन. वी ऑलवेज नीड वर्किंग कैपिटल. इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल, वी कैन नॉट वर्क, राइट? सो वर्किंग कैपिटल इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? Now, in order to study the financial position or short-term financial position of a concern, one should make a comparison of the working capital of both the years. The excess of the current assets over current liabilities will give the figures of working capital. तो working capital कैसे पता चलेगा? Working capital is equals to, मैं लिख रही हूँ, current assets minus current liabilities. This is called working capital. Fine. If on comparison the working capital shows an increase, it means there is an improvement in the current financial position. तो सीधी सी बात है, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इफ यू आर कंपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ 2 और मोर पीरियड, 2 या 2 से ज्यादा साल का हम बैलेंस शीट को स्टडी कर रहे हैं, तो हमने देखा देयर इज एन इंक्रीज, देयर इज अ ट्रेंड, देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द वर्किंग कैपिटल. सपोज इफ यू आर फाइंडिंग दैट इन द ईयर 2013, लेट अस look in this way. If we are finding that there are we are comparing the position of 2013 2014 and this is percentage change, ऐसे हम study कर रहे हैं. Fine. Now if we are comparing, if we are studying the working capital position, if we are studying the current financial and liquidity position, then at that point of time we have to study the working capital position. Now working capital, if for suppose in 2013 the working capital is 1 crore, whereas in 2014 it is 1.5 crore. So there is substantial increase, 50% increase, where it means the financial soundness of the firm is increasing.
An increase in the current assets accompanied by increase in current liability at the same amount will not show any improvement in the short term financial position. आपका current asset भी बढ़ रहा है, current liabilities भी बढ़ रही, कोई फायदा नहीं है. One should study the increase or decrease in the current assets and current liability. This will help him to analyze the current financial position of the business. Secondly, one should study the liquidity position of the concern. In case the liquid assets like cash, bank bills, receivables show an increase in the second year over the first year, this shows there's an improvement in the liquidity position. If you are finding that there's an increase in the current asset like cash की position, bank की position बढ़ रही है, so definitely we are understanding that the liquidity position is increasing. ठीक है. Inventory increase may increase working capital but it will not be good for business. Suppose, अब ये भी एक बात है, current assets increase हो रहा है, आपका cash balance increase हो रहा है, this is good, but current asset में अब आपको component को देखना है. If suppose current asset में आपकी inventory भी आ गई, stock, inventory बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ी और यहाँ उससे ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री बढ़ी हुई है, इसके कारण करंट एसेट बढ़ा है, देन दिस इज नॉट गुड फॉर बिजनेस. तो करंट एसेट में भी वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज in the we understood the in the balance sheet, the first point we studied is current financial and liquidity position, that means the short term position. From the balance sheet, the first thing that we studied is the short term liquidity position of a company. Second is the long term financial and पोजीशन. अब हम बैलेंस शीट से लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को भी स्टडी कर सकते हैं. द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी एनालाइज्ड बाय स्टडीइंग द चेंजेस इन द फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड कैपिटल. अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या स्टडी करेंगे? चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म liabilities and capital. An appropriate financial policy of the concern will be to finance fixed assets by the issue of either long-term securities such as debentures, bonds, loans from financial institution or issue of fresh share capital. An increase in fixed assets should be compared with the increase in the long-term loans and capital. Suppose अभी मैं increase देख रही हूँ कि fixed assets increase हुआ, but along with fixed assets क्या increase हुआ? Long term capital, long term loans increase हुआ, capital increase हुआ, क्या हुआ? In case the increase in fixed asset is above the increase in long term security, then it means the part of fixed asset has been financed by the working capital. On the other hand, if the increase in the long term security is more than the increase in fixed asset, it means that fixed assets have not been financed by the long term sources, but a part of working capital has also been financed from long term sources. A prudent policy will be to finance fixed asset by raising long term finance. देखो प्रूडेंट पॉलिसी यहाँ पर भी आ गई. प्रूडेंट पॉलिसी अकाउंटिंग में किसको बोलते हैं? बी कॉशियस. कॉशनरी पॉलिसी. कॉशनरी पॉलिसी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स टू बी फाइनेंस्ड बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स. सी, one more very important thing to understand is that we know that there are, हमने accounting question पढ़ा ना, there are sources of funds and there are application of funds. sources of funds किसको बोलते हैं हम? liabilities को. application of fund किसको बोलते हैं? assets को. हमें पता है liabilities is equals to asset, but यहाँ पे हमें एक ट्रेड ऑफ करने की ज़रूरत होती है. अब सोर्सेज ऑफ फंड ना लॉन्ग टर्म हो सकता है और शॉर्ट टर्म हो सकता है. वेयर इज एप्लीकेशन ऑफ फंड कुड ऑल्सो बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. हो सकता है. तो बोल. हाँ बोल. गुड मॉर्निंग. किसका? अच्छा ठीक है, भेज देती हूँ. पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी. अच्छा हाँ
हाँ है, पीछे है, पीछे है, नहीं पीछे है। हाँ वही है। ठीक है, ठीक है, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी तो हाँ मैं भेज देती हूँ। थोड़ा देर रुकेगी, मैं क्लास ले रही हूँ। मैं भेज देती हूँ, हाँ भेज देती हूँ। ओके, यहाँ पर हम लोग जैसे बात कर रहे थे, देखो एक चीज़ इसमें समझो कि हमारा डिफरेंट सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ फंड जो है डिफरेंट सोर्सेज हो सकता है, तो इट कुड बी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड एंड देयर आर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी देखो, वी हैव लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होगा? व्हेन वी आर प्रोक्योरिंग फिक्स्ड एसेट्स। जब हम फिक्स्ड एसेट ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑफ फंड। और शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होगा? व्हेन वी आर प्रोक्योरिंग करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, ये सब हो गया शॉर्ट टर्म। अब वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट यूज शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड फॉर प्रोक्योरिंग लॉन्ग टर्म एसेट, एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज को शॉर्ट टर्म के लिए हम नहीं लगाएंगे। ये क्या होगा? गलत होगा ये पॉलिसी। क्या करना चाहिए? प्रॉपर मिक्स क्या होना चाहिए? कॉशनरी मेजर्स। प्रॉपर क्या होगा? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लॉन्ग टर्म एसेट को प्रोक्योर करें एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज से शॉर्ट टर्म एसेट को प्रोक्योर करें। बिकॉज ये जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ फंड, देयर आर कॉस्ट, रिस्क इन्वॉल्व इन इट। कॉस्ट इन्वॉल्व है, खर्च तो है ना, जो हमारा सोर्सेज ऑफ फंड है। सपोज मैं तुमसे उधार ले रही हूँ तो मुझे उसका इंटरेस्ट तुमको देना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मे बी अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो तो मुझे मॉर्गेज में रखना है, रिस्क लेना, तो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। तो कॉस्ट है, रिस्क है, और हम जब एक एसेट में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, देयर आर रिटर्न इन्वॉल्व इन इट, रेट ऑफ रिटर्न इन्वॉल्व। जैसे यहाँ पर कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व है, यहाँ पर रिटर्न इन्वॉल्व है, दोनों को मुझे बैलेंस करना है। So it is very important that we must cautionary measures while making a trade-off. Long term sources से, long term sources of fund से long term assets में हम procure करें, short term sources से short term assets को procurement करें। Clear हुआ? समझ में आया? मोपाली, कौस्तवी बोलो, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ू? सब कितना होशियार है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को अगर ऐसा दिख रहा है कि देयर इज अ फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग टर्म, देखो हम लोग जब फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वी हैव टू चेक द लॉन्ग टर्म लोन्स। एसेट में फिक्स्ड एसेट इज इंक्रीजिंग, देन लॉन्ग टर्म लोन्स मस्ट बी इंक्रीजिंग। बैलेंस शीट में तो होना चाहिए, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी, क्योंकि कैश में नोबडी इज, for any company is not going to buy everything in all the fixed assets in cash. It's not possible. That means company will buy fixed asset or finance it from the long term sources. So we must, when we are comparing the balance sheet, we must check that if the fixed asset is increasing, it should be backed by the long term liability. There must be a rise in long term liabilities. Suppose if there is an increase in fixed asset but long term liability has not increased, it simply means that the fixed asset is procured by the short term sources, which is not good for any organization, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कॉस्ट हमेशा हाई होता है, ठीक है, और कॉस्ट हाई लेकर आप लंबे टाइम के लिए पेमेंट करते रहो, इट वुड बी डिफिकल्ट हो सकता है ना। तो प्रूडेंट पॉलिसी क्या है? प्रूडेंट पॉलिसी विल बी टू फाइनेंस फिक्स्ड एसेट बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। Important है, this line is very important from MCQ point of view. A prudent policy will be to finance fixed asset by raising long-term funds. Clear? The nature of assets which have increased or decreased should also be studied in the form and opinion about the production possibilities and planning. Now we also need to understand कि asset जो increase हो रही है और decrease हो रही है, how it is going to help us in production possibilities and planning. Whether it is going to help in enhancing the production possibilities or planning. The increase in the plant and machinery will increase production capacity of the business. देखो कोई plant and machinery increase हो रही है तो it will increase the production capacity of the business. On the liability side, an increase in the loaded fund
Loan fund will mean an increase in interest liability, whereas an increase in share capital will not increase any liability for paying interest. देखो हर एक चीज का अलग अलग इम्पैक्ट है. If there is an increase in fixed asset, तो फिक्स्ड एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स अवर एसेट इज इंक्रीजिंग एंड फिक्स्ड एसेट में देयर आर चांसेस दैट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज विल इंक्रीज. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होगी. फिक्स्ड एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कंपनी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी ना, एनहांस होगी. प्लानिंग है कुछ ना कुछ, प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन, दैट इज व्हाई इट्स इंक्रीजिंग इट्स फिक्स्ड एसेट. फाइन. इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी विल इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी. उस प्लांट एंड मशीनरी लिया हमने तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटीज. प्रोडक्शन कैपेसिटी विल इंक्रीज. फाइन. ये सब चीजें समझने की है कि अगर बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, क्या उसके बढ़ने पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सब चीजें समझना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड इफ द लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी अब क्या हो रहा है? एक हो गई आपकी लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई, लॉन्ग टर्म बैंक लोन वगैरह हो गया. तो लोन फंड अगर हुआ, सपोज लोन फंड आपका है, तो लोन फंड से क्या होगा? आपके पास एक इट विल इंक्रीज योर लायबिलिटी बर्डन. लायबिलिटी बर्डन मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट बर्डन हो गया, सिंपली इंटरेस्ट बर्डन आपका बढ़ गया. ऑन द अदर हैंड इफ द लायबिलिटी साइड इज इंक्रीजिंग विद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल रेज किया हमने, कैपिटल रेज किया तो ओनरशिप बेचा ना हमने, तो इक्विटी होल्डर्स तो वो कंपनी के ओनर्स हो गए. दैट मीन्स आई एम नॉट लायबल टू पे देम विद द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का तो एक बर्डन मेरे ऊपर नहीं है, राइट. Whereas an increase in the share capital will not increase any liability for paying interest. Share capital increase हो रहा है, इससे भी liability increase हो रही है, but यहाँ पर no burden for paying interest. Interest का तो कोई झमेला नहीं है ना हमारा, right? Now profitability of the concern. Finally, from the balance sheet, we are going to study this profitability factor. Of the concern. The other most important aspect that should be studied is the profitability of the business. A study of increase or decrease in retained earnings, various resources and surpluses, etc. will enable the analyst to see whether the profitability has been improved or not. An increase in the balance of profit and loss account and other resources created from profits will mean an increase in profitability of the concern. The decrease in such accounts may mean issue of dividend, issue of bonus shares and deterioration in profitability of the concern. ठीक है? This was all about the comparative statement, जहाँ पे हमने comparative statement में सिर्फ comparative balance sheet के बारे में बात की है. We'll be doing one sums. Profitability